Today we will start chapter 1, compound interest. Lecture number 4 from A. Das Gupta for class 9th for ICSE. फोर का ए पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट. What they have asked, find the rate. What their question is, find the rate of compound interest per annum at which rupee 800 become rupee 882 in 2 years. What is 800? Principal. 882 is the amount. Become means 800 itna ban gaya. In 2 years. Time is 2 years. Rate we have to find. Here, principal is rupee 800. Time is 2 years. Amount is rupee 882. What is the formula for amount, Mayank? P Sir, P1 plus R upon 100 की power raised to T. power T Whole की power is T. equal to 882. Principal 800. 1 plus rate, we have to find R upon 100. 1 plus R over 100 raised to power 2 becomes equal to 800 is multiplied, become downwards. 882 upon 800. $441 upon 400. Then left hand side. Yes. 441 upon 400 किसका square है? That is 21 upon 20 whole square. Power is same. Then bases are also same. हमने क्या लाइन लिखनी है यहाँ पे? Comparing both the sides. We get 1 plus R over 100 is equal to 21 over 20. R over 100 becomes equal to 21 over 20. 1 become minus on that side. R by 100 becomes equal to 20 is the LCM. 21 minus 20. R by 100 becomes equal to 1 by 20. And R becomes equal to 1 by 20 into 100. Then R becomes 5% per annum. Understood? समझ आया बच्चे ये? रोहित, Yes. प्रियांशी. Yes, sir. Yes, sir. Now, question number 4, B part is same. You can do it yourself. इसमें भी rate find करना है. If rupee 1200 principal become rupee this is the amount in 2 year. Time is 2 year. Find the rate of interest. We have to find the rate. You can find it. Now, fifth sum. If a sum of money become to 1 by 4 time in 2 years, means अगर principal x है तो amount to 1 by 4x हो जाएगी. Time 2 year, rate of interest we have to find. Question number 5. Yes, Sriyanshi. Sum of money. Let principal be X. rupee x. Rupee डालना मत भूलना. Rate we have to find. Time is 2 years. Then what is the amount is 2 1 by 4 time ना rupees. तो amount के place पे amount का formula. Yes, Sriyanshi. So 1 P 1 by yes.
power t 8 9 by 4. Principal x 1 plus rate we have to find r by 100. Time is 2 year 9 by 4. From here 9 by 4 x is also there. Now 1 plus r over 100 whole raised to power 2 as like 9 by 4x. जो x है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा ना श्रेयांशी? सर डिवाइड में होगा ना? डिवाइड होगा, पता है तेरे को? 1 plus r over 100 raised to power 2. Here 9 by 4 is there. क्या लिखूं मैं इसको श्रेयांशी? सर 3 स्क्वायर इनटू मतलब 3 by 2 whole square is there. Yes or no? 9 Yes. 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर. अगर लेफ्ट साइड में पावर 3 है तो राइट में भी 3 पावर बनेगी बनेगी. अगर 4 पावर है तो 4 बनेगी बनेगी. Comparing both the sides, 1 plus r over 100 becomes equal to 3 by 2. R by 100 is 3 by 2 minus 1. R by 100 becomes equal to 2 is the LCM. 3 minus 2. R by 100 is 1 by 2 and R is 1 by 2 into 100. Right? These two 50. What we get? 50% per annum. This is the rate of interest. जब भी इस टाइप से सम आता है कितने टाइम हो गया तो दैट मीन उस टाइम हम प्रिंसिपल को एक्स लेट कर लेंगे, अमाउंट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना टाइम बोला है उन्होंने, और उसमें हमने सिंपल वैल्यूज फिल किया एंड गेट द आंसर. समझ गए बच्चे? यस सर. Now sixth sum. A sum of money is invested for 3 years at 5% per annum compound interest reckoned annually. If the total interest earned, अब interest is given, find the sum of money. Principal we have to find. Yes, Rohin. Yes, sir. हमें given क्या है वो देखिए. A sum of money, principal is not given. तो प्रिंसिपल पे मैंने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया. A sum of money invested for 3 years. Time is 3 years. Rate of interest is given 5% per annum. Now interest is 2. Yes. Now what is the formula of interest? Yes, Mayank. Mayank, sorry, Rohin. Sir, P into R into T by 100. This is not the simple interest. Reckoned annually बोला है ना? Okay, sir. कंपाउंड इंटरेस्ट भी बीच में बोला हुआ है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर टी माइनस 1 is 2522. One plus rate 5 by 100 whole raised to power 3 minus 1 is 2522. Principal we have to find. This is cutting 20. So P 1 plus 1 by 20 whole raised to power. From here principal 20 is LCM. 20 plus 1 whole raised to power 3 minus 1 is 2522. P as like 21 over 20 का Q 8 84692 9261 अपॉन 20 का Q रोहिन कितना होता है? Sir, 20 cube. हाँ जी कितना होगा? 21 का क्यूब ये आ गया. Sir, 400. 20 cube. 2 2 4 2 8 और क्यूब है तो 3 zeros.
क्यूब सर, मैंने स्क्वायर बता दी। This one. P we have to find. 8,000 is the LCM. 9261 minus 8,000 is 2522. Here P as like subtract these two. 1261 upon 8,000 is 2522. Now principal becomes 2522 into 8,000 अपॉन 1261. ये पूरा पूरा कट होगा 2 पे, करके देख लेना, पूरा पूरा कट होगा. 8 2 16 rupees 16,000 is the principal. That is the money invested. समझ आया बच्चे? सिंपल था, कुछ नहीं. जो इंटरेस्ट दिया था, इंटरेस्ट के प्लेस पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है. अभी हम अमाउंट का नहीं लगा सकते. अगर अमाउंट दिया होता तो अमाउंट का लगता. ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि ये बहुत कम यूज किया हमने. उसके बाद उसमें सारी वैल्यूज फिल करके कैलकुलेशन ही है, ये सारा कैलकुलेशन पार्ट है. और कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक करनी है तो कर ही देंगे. इसका एक ही तरीका है कैलकुलेशन सुधारने का, जितने सम प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना इजी होता जाएगा. नाउ मयंक, क्वेश्चन नंबर 7. अब ये टाइम से रिलेटेड सम. दिस सम इज रिलेटेड टू टाइम. हाउ टू वी कैन फाइंड द टाइम? In how many years will a sum of rupee this amount to this? Principal, this is amount at a compound interest rate 12.5%. देखिए, principal is rupee 5,120. Amounts to rupees 7,290, 7,290 per annum. 12 to the 24, 25 by 2% per annum is the rate of interest. Now, formula in place of A, write down its formula. P 1 plus R over 100 raised to power T is 7,290. Principal we have to find. Principal is given. 1 plus rate 25 by 2 now. 100 is already there, तो 25 by 200 हो जाएगा. Power T we have to find. कितने पे? 8 पे. 25 8 200 होता है. 5120 को नीचे ले जाओ. यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले लूं बेटा. एक स्टेप में खा गया. यहाँ पे मुझे भूख लगी थी. 3 to the 6, 12, 4 to the 12, 3. यहाँ पे 2 to the क्या कर दिया? किसके टेबल पे काटा था मैंने? 2 के टेबल पे काटा? नहीं, 2 के टेबल तो कट ही नहीं रहा. नहीं, कट नहीं होगा. 729 अपॉन 512 ये कट नहीं हो रहा. अब यहाँ पे 9 by 8 का की पावर टी आ गया. राइट साइड में भी बेस 9 by 8 ही बनेगा. 729 में अंक 9 की पावर कितनी होती है? और 812 8 की पावर कितनी होती है? जल्दी से बताइए. 9 9 81, 81 9 729 means power 3 ना. 3 years. Comparing both the sides, base are same, then power is also same. 3 years. This is our answer. समझ गए बच्चे? लग गया बता? Yes sir. पक्का? Yes sir. Yes, sir. Now question number. In how many full years will a sum of money become more than double at a compound interest rate 20% per annum? अब देखो क्या लिख दिया उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए. In how many years will a sum of money be? श्रेयांशी इसको कैसे करेंगे? At compound interest rate 20% per annum.
इन हाउ मेनी फुल ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी, फुल ईयर भी लिख दिया, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा टाइम, 1 ईयर होगा या 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर, इस टाइप से होगा। सर x+2। नहीं बेटा, टाइम वी हैव टू फाइंड, सम ऑफ मनी बिकम मोर देन डबल ना, तो हम एक बार डबल लेके चलेंगे। लेट प्रिंसिपल बी ₹x, लेट अमाउंट बी डबल ना, ₹2x हो जाएगा ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 20% पर एनम। तो हियर अमाउंट के प्लेस पे अमाउंट का फॉर्मूला 1+r/100 raised to power t is equal to 2x ना। x 1 plus rate 20 by 100 raised to power t is equal to 2x, 0 से 0 कट हो गई 5, तो यहाँ पे 1 तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 6/5 की पावर t आ गया, और इस साइड 2 आया, तो मैं क्या करूं अभी, व्हाट आई कैन डू, ये तो गड़बड़ हो गई। बताइए बच्चे, नाउ व्हाट वी कैन डू। टी कैसे फाइंड होगा, बता सकते हो बच्चे, बोलिए। नो सर। हाँ, मुझे भी नहीं पता क्या किया जाए। मयंक, रोहिन, व्हाट वी कैन डू। सर टी का फॉर्मूला नहीं, टी का फॉर्मूला नहीं। 2 को मैं क्या करूं कि 6/5 के नियर अबाउट आ जाए। 2 को 6/5 की फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखें। 6 का स्क्वायर 36, नीचे 25, मतलब रफ में देखो, मैं चेक करवा रहा हूँ आपको। ये कितना बनता है डेसिमल में अगर चेंज करें तो 1.2 बन रहा है ना, 6/5 1.2 बनेगा ना। यस इसको सर। करके यस देखो, सर। मतलब मैंने क्या किया, 6/5 का स्क्वायर करके देखा कितना बन रहा है ये, अगर मैं डेसिमल में चेंज करूँ 25 1 जा 25, कितना बच गया 110, 1.4 समथिंग आएगा, बट मुझे तो 1.2 चाहिए था, है ना, तो ये नहीं ले यस सर। सकते। 6 का क्यूब कर दो 216, 5 का क्यूब करो 125, इसको भी डिवाइड करके देखो कितना आएगा ये, करोगे डिवाइड 216 को वो 120 बन जाएगा, तो नहीं 7 या 6 बनेगा, 6 का क्यूब यही होता है ना 2, हाँ ठीक है। 6 की पावर 4 कितना बनेगा, 36 × 36, 1296 अपॉन 5 का की पावर 4 625, कितना बन रहा है ये, नियर अबाउट कट करके 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 ही आएगा ना, यस सर। बताइए। तो मतलब मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा 6/5 की पावर 4, समझे। रफ वर्क में इसको चेक किया, क्योंकि 625 1250 होता है,
और इन्होंने मोर देन 2 ही क्या मोर देन बोला था ना, मोर देन डबल। अगर इसमें थोड़ी सी वैल्यू और ऐड कर दें तो मोर देन डबल ही हो जाएगा ना। 2x की जगह 2.1 या 2.2 लगा दें तो दैट इज सेम थिंग। तो 6/5 की पावर 4 कंपेयरिंग बोथ साइड टाइम इज 4 years। फुल ईयर बोला था उन्होंने। दैट्स द Yes. रीजन, पता चला। नाउ नेक्स्ट सम दैट इज आल्सो डिफरेंट, उसमें कुछ डिफरेंट है। 9th सम। A certain sum of money amount to this in 2 years and this in 3 years at the same at annual compound interest rate. Find the rate of interest and दो चीजें मिसिंग है। अब देखो क्या लिखा है उन्होंने, श्रेयांशी, a certain sum of money amount to this in 2 years। 2 year में तो ये अमाउंट बन जाती है, 3 year में इतनी अमाउंट बन जाती है at the same rate of same annual compound interest rate। पी, तो यहाँ प्रिंसिपल को क्या लेट कर लो, प्रिंसिपल इज टू बी टेकन एज 2px, ठीक है, और रेट को y% पर एनम ले लो, ले लिया। अमाउंट इन 2 years हमें कितनी गिवन है, 2646 रुपी, 2646। अमाउंट का फॉर्मूला बताइए बच्चे, श्रेयांशी क्या लिखूंगा, Sir, P. x लिख दिया, Yes, sir. ब्रैकेट 1 plus R upon 100. r की वैल्यू y है बेटा, पावर T. टाइम इज 2 2 years, years. 2646। take it as the first equation। now amount in 4 years, 4 years में अमाउंट हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, दैट इज रुपी 2778.30। यहाँ पे प्रिंसिपल सेम x, 1 रेट y अपॉन 100 की पावर Sir, 4। हाँ amount जी, 3 years का दिया हुआ है। सॉरी 3 years का है, 4 कहाँ से लिख दिया मैंने, 3, 2778.30। टेक इट एज सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, लेफ्ट से लेफ्ट राइट से राइट, x इंटू 1 प्लस, मतलब इसमें जब भी इस टाइप से सम होगा तो याद कर लो कि बिगर वाले जो टाइम वाली अमाउंट है उसको से छोटे वाले को डिवाइड करना है। मतलब हमने पहले फॉर्मूलाज फिल किया, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट नहीं पता, दोनों की वैल्यूज फिल की, एक्स एंड वाई लेट कर लिया था, नीचे x 1 प्लस वाई अपॉन 100 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2778.30 अपॉन 2646। ये वाले लेफ्ट से लेफ्ट राइट से राइट, डिवाइड 2/1 है ना, तो 2 वाली ऊपर आएगी और 1 वाली नीचे आएगी। x से x कट गया, से ये कट गया, पावर 1 आ गई, तो 1 प्लस वाई अपॉन 100, नीचे 1 है लिखने की जरूरत नहीं, पावर 1 है, लिखनी है लिख दो, नहीं लिखनी ना लिखो। यहाँ पे क्या करो, डेसिमल हटा लो, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ गया, आ गया, 0 से 0 कैंसिल, कैंसिल कर दी, और कुछ कट होता है, 9 3 12 12, एक मिनट, 9 9 7 16 3 19 19 8 27 6 10 10 8 18, ये 3 के टेबल में कट हो रहे हैं, 9 3 का 27, 3 2 का 6, 18 6 3 का 18 1, नीचे बेटा 8 3 का 24, 8 3 का 24 2 8 8 2। अब किसी और टेबल पे कट हो रहे हैं ये, आई थिंक नो, नहीं हो रहे ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो Sir, नहीं की, 3. कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 3 के टेबल पे 9 टू 11 11 7 18, हाँ 18, 3 के टेबल पे फिर से जा रहे हैं, 3 0 8 3 24 7, यहाँ पे 3 3 जा
3 2 6, 9 3 27, 4। फिर से 3 पे जा रहे हैं, 7 9 3 27, 8। यहाँ पे 1 0 2 9, अब नहीं कट हो रहे। तो यहाँ से y बाय 100 1029 अपॉन 98 माइनस 1, 1 क्या हो गया, माइनस हो गया। y बाय 100 98 इज द एलसीएम, 1029 माइनस 98 हो जाएगा। माइनस किया, 9 माइनस 8 1, 12 माइनस 9 3, यहाँ पे 9 अपॉन 98। y की वैल्यू 931 अपॉन 98 इंटू 100। इसका आंसर चेक करना, डेसिमल में आंसर 9 का नहीं, हमने कहीं मिस्टेक की है। कहाँ मिस्टेक की है ये चेक कीजिए। वैल्यूज तो सही फिल की है ना, 3 0 ठीक है, 2646 ही है ना 2 ईयर्स में। 1 प्लस वाई बाय 100 277 830, एक जीरो कट हो गई। ओहो, ये एक जीरो भी पड़ी है ना, 980 माइनस होना था। माइनस करो, 9 माइनस 0 9, यहाँ पे कितना बच गया, 11 नहीं, हाँ 9 माइनस 0 9, 12 माइनस 8 4, 40, 1 बाय 2 बच गया। 100 कहाँ चला गया, ऊपर, 980 था यार, 20 बच गया। 0 से 0 कैंसिल, 5। ये छोटी सी मिस्टेक और सारा आंसर रॉन्ग हो गया था। देखो ये जीरो जो था, समझ गए बच्चे, जो वाई क्या था, रेट, एक आंसर हमारा आ गया। अब वाई की वैल्यू 5 इसमें फिल कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, और एक्स की वैल्यू फाइंड करो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये अपने आप करोगे। टेंथ सम, क्वेश्चन नंबर 10। अब हमें डिफरेंस दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 2 ईयर एंड 3 ईयर। दिस डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, किसका, 3 ईयर का और 2 ईयर का। 2 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, 3 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, ये दिया हुआ है। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी हमने फाइंड करनी। ओहो, बड़ी गड़बड़ की है पूरी। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3 ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2 ईयर इज गिवन 121, ये गिवन है हमें। CI3 का मतलब अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर, एंड CI2 का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर। दोनों का डिफरेंस हमें 121 दिया है। तो यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर 3, सिर्फ टाइम की वैल्यू फिल कर रहा हूं मैं, माइनस 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर 2 माइनस 1 ना, इजिकल टू 121। P को इससे भी करो, P को इससे भी करो, P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर 3 माइनस P इंटू 1, P हो जाएगा, माइनस P इंटू 1, P, ये पूरी ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस P इंटू 1 P। समझ आया मयंक, क्या किया मैंने, मयंक रोहित, P कैंसिल हो गए। इन दोनों में व्हाट इज कॉमन, P कॉमन है, 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू पावर 2 कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट, यहां से 1 बच गया, 1 बच गया, माइनस 1 इज 121।
कैलकुलेशन देखो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 था, पावर 3 में से पावर 2 गई है, तो 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 1 बचेगा ना, 1 पावर डालने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा चला गया -1। तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है ना, नहीं टाइम किधर गया, हाँ, आर की वैल्यू 10% गिवन है, पी हमने फाइंड करना है 1 प्लस 10 ओवर 100 की पावर 2 इंटू आर बाई 100, 10 बाई 100 इज 121। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल, 10 is the LCM, 10 plus 1 whole raised to power 2 into 1 by 10 is 121। तो यहां से P 11 upon 10 raised to power 2 into 1 by 10 is 121। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 into 1 by 10 is 121। यहां से P की वैल्यू 121 एज लाइक 100 और 10 कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, और 121 कहाँ चला गया, नीचे, ये कट हो गया। 100 into 10 रुपी 1000 इज द आंसर। समझ आ गया बच्चे? सर एक Yes, बार sir. रिपीट कर दो ना। कर देता हूँ बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया बेटा, 3 का मतलब 3 ईयर के लिए था ना ये। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पता है श्रेयांशी? यस सर। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा, बीच में माइनस साइन था, सेम रहा, ब्रैकेट्स को ओपन किया, पी इंटू दिस, माइनस पी हो जाएगा ना, माइनस पी इंटू दिस, ये आ जाएगा, माइनस पी इंटू -1 करेंगे, प्लस पी आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस पी और प्लस पी कैंसिल कर सकते हैं ना हम। यस सर। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, पी कॉमन है, 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो 1 प्लस आर ओवर 100 की पावर 2 कॉमन आ गया। यस सर। यहाँ से पावर 2 गई तो 1 प्लस आर ओवर 100 बच गया, माइनस ये सारा का सारा चला गया 1 और -1 कैंसिल। सर वहाँ पे ठीक। -1 नहीं समझ में आया। ये यस सर। ये देखो ना बेटा, ये सारा का सारा चला गया ना। चलो यस मुझे एक सर। बात बताओ, मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बचेगा? सो x -1। अब 1 कहाँ से आया? सर x की जगह। हाँ, वैसे ही ये सारा का सारा कॉमन चला गया ना, देखो बाहर, ये रहा, यस सर। यहाँ से p चला गया और पावर 2 चलेगी, तो एक पावर बच गई ना, यस सर। माइनस ये सारा का सारा चला गया, जैसे यहाँ से x चला गया तो 1 बचा, वैसे ही यहाँ 1 बच गया बेटा। ओके सर। -1 और +1 कैंसिल, सिंपल उसमें r की वैल्यू फिल की और कैलकुलेट किया, वी गेट द आंसर। ओके सर। Now the next sum, at what rate compound interest would rupee 80,000 amount to 8,200 in 2 years? और 8 वाले बहुत सम कर लिए हमने, फाइंड करने वाले, हो जाएगा? बताइए बेटा, रेट वाला सम नहीं किया था अभी, फोर्थ सम ये रहा, सेम ही है, फाइंड द रेट, मतलब 882 बन गया, तो रेट फाइंड करना है, यहाँ पे भी वही सेम है, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट इन 2 ईयर, टाइम गिवन है, रेट फाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो रेट आ गया, प्रिंसिपल यही लेके, रेट लेके, टाइम 3 ईयर लेके, क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। कर लोगे? सर ट्राई करेंगे। कुछ नहीं, आर फाइंड करना तो आता ही है ना, यस सर। अमाउंट फाइंड करना आता है, यस सर। बस पी आर और टी की वैल्यूज फिल करो और अमाउंट निकालो। ओके सर। 12th, the compound interest calculated yearly on a certain sum of money for the second year is this and the third year is this. The compound interest second year का इतना है, third year का इतना है, calculate the annual rate of interest and the original money. ओरिजिनल मनी फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, रेट, ना रेट पता है ना प्रिंसिपल पता है। और ये क्या है 880 on a certain sum of money for second year, 2 year का नहीं, only for second year this one, only for third year this one, ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पे देखो,
ये सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से करना पड़ेगा हमें। लेट प्रिंसिपल बी ₹X, रेट बी रुपी Y% पर एनम। फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट SI 1 लिख दिया मैंने। PX रेट Y टाइम 1/100, XY/100 आ गया। अमाउंट फाइंड करो A1 मतलब फर्स्ट ईयर का अमाउंट। एक काम और कर सकते हैं अगर करना है तो। हमें सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है 880, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दिया है 968। तो हम क्या करते हैं, तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट XY/100 आया फर्स्ट ईयर का, प्लस 880 प्लस 968। इसमें प्रिंसिपल भी ऐड कर दें X, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा ना, 3 ईयर का अमाउंट बन जाएगा। देखते हैं, मुझे लगता नहीं कि आएगा क्योंकि दोनों ही नहीं पता। 6 8 14 10 8 18, दिस वन। प्रिंसिपल X 1 प्लस Y/100 की पावर 3। हाँ ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट, नहीं आ रहा। गंदा सा समय। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल X XY/100, 100 इज LCM XY। अब जो अमाउंट है सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया ना, 100X प्लस XY/100 इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। रेट वही रहेगा, टाइम 1 ईयर ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 फाइंड करो। यार बड़ा गंदा है, रहने दो। ये तो हो नहीं पाएगा ऐसे तो। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल फाइंड नहीं हो सकता, एक सेकंड। प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर ₹X ले लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर दिया हुआ है ना हमें, कितना 880। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर दिया हुआ है ना, कितना 968। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से गड़बड़ हो रही है। P2 जो होगा वो यहाँ से अमाउंट आएगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर नॉट फॉर 2 इयर्स, अगर 2 इयर्स का होता फिर तो इजी होता। ओहो, ये पता है कैसे होना था, जो इंटरेस्टिंग हमें दिए हुए ना सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का। बच्चे एक थोड़ा सा ध्यान दो, इन दोनों का Yes. डिफरेंस करो। 968 माइनस 880, व्हाट इज दिस? 8 16 माइनस 8 8, ₹88 आएगा। ये ₹88 कितने टाइम का इंटरेस्ट है? किस रुपीस पे इंटरेस्ट है ये? सर एक टाइम का इंटरेस्ट है 1 ईयर का। ना,
प्रिंसिपल पे, थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल है उसका इंटरेस्ट है ये। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल जितना इंक्रीज हुआ है उसका इंटरेस्ट है। नहीं समझे? देखो हमारे पास 3 ईयर्स होते हैं, SI1, SI2 फाइंड करते हैं हम, SI3 फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो क्या होता है? अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का, यस और नो? Yes, sir. जो यहाँ पे प्रिंसिपल यूज करते हैं वो क्या होता है? Amount सेकेंड of ईयर, The second year मतलब सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर, है ना? हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। sir. बट वी गेट, Sir, interest. किस चीज पे इंटरेस्ट लगेगा वो? Sir, जितना third year. है, जितना नहीं नहीं, 880 पे लगेगा बेटा वो, Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. समझे बच्चे, जितना है यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट आया उतना ही हमने प्रिंसिपल में ऐड किया, तभी तो इतना इंक्रीज हुआ ना वो। तो यहाँ Yes. प्रिंसिपल एक्स स्टार्टिंग वाला ही होगा, रे सॉरी रेट 80 यूज करेंगे। रेट हमें नहीं पता, आर टाइम 1 ईयर, 1 ईयर का ही हुआ ना, नीचे 100 इज इक्वल टू 88। बड़ा वो है दिमागी सम है, दिमाग खराब कर दिया इसने, सारा घुमा दिया पर एनम। ठीक है, बताइए। यहां से फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे ना, प्रिंसिपल एक्स, रेट हमने 10 फाइंड किया, टाइम 1/100, तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल एक्स मतलब सिंपल इंटरेस्ट x/10 आ गया। अमाउंट क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तीनों ईयर्स का इंटरेस्ट जोड़ दो, x/10 प्लस 880 प्लस 968। अब अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 10 है बाई 100 रेज टू पावर 3 इज दिस वन, 10x plus x 11x by 10 plus 8 6 8 6 14, 1 कैरी 18, ये आ गया। ये ना क्यूब ओपन करना पड़ेगा, बड़ी पंगे हैं। या एक काम और भी कर सकते थे, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकेंड ईयर का ये है, P इंटू आर इंटू टी। जो P फाइंड होगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा वो भी। 11x/10 प्लस 1848, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 11/10 का क्यूब 1331/1000। यार इतनी गंदी बुक क्यों है ये? 1331x/1000 माइनस 11x/10। स्कूल में कितने चैप्टर करवा दिए बच्चे श्रेयांशी? Sir, अभी फर्स्ट चैप्टर में ही है। फर्स्ट चैप्टर में ही है, बैंड बज जाएगी तुम्हारी टीचर की। लास्ट ईयर में ये बुक लगी हुई थी। Yes. 231x/1000 इज 1848। यहाँ से x की वैल्यू 1848 इंटू 1000/231। आई थिंक सो 8 पे पूरा पूरा जाना चाहिए, 231 इंटू 8, हाँ पूरा पूरा जा रहा है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 8000 रुपी आ गया।
यहीं तक करो बेटा, एक लेक्चर हमारा और लगेगा इससे, तो सही में सम ही बहुत ज्यादा है। सर दो मेरी तीन फर्स्ट एक्सरसाइज में एक डाउट है। बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर फर्स्ट मुझसे नहीं बन रहा है। 5 का फर्स्ट नहीं बन रहा। यस सर। कोई बात नहीं, फर्स्ट ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट नहीं बन रहा। नो सर 1B 1B। 1 5th का फर्स्ट पार्ट इज सम ऑफ रुपी, प्रिंसिपल इज रुपी 3500, will become amount 4390.40 rupee. Rate of interest is given 12%. Number of year time find करना है ना, amount का formula P, that is 3500. 1 plus rate 12 by 100, 439040 upon 100 लिख दूं बेटा मैं? Yes or no? यस सर। ये कट हो गए 4 के टेबल पे। 3500 यहाँ पे 25 plus 3 28 by 25 आ जाएगा ना, पावर टी। ये 0 से 0 कट करो, पूरा पूरा कट कर दो। यहाँ पे 5 आ गया 2 के टेबल पे, 21952, 21952 अपॉन 5, ये नहीं कट हो रहे। अब 28 अपॉन 25 की पावर टी को ऐसे ही रखो बेटा, 21952 अपॉन 5, और 3500 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा ना, यस और नो? यस ये बच्चे आई थिंक सो 7 के टेबल पे कट होना चाहिए। 2 के टेबल पे तो कट हो ही रहा है, पहले 7 पे देख लेते हैं। 7 से 21, 7 1 7, 25, 21, 42 जा रहा है। 7 3 21, 7 1 7, 25, 7 3 21, 42, 7 6 42। अब ये फिर से किसके टेबल पे जा रहा है? 4 के टेबल पे जा रहा है। 4 1 4, 10, 4 2 8, 5। यहाँ पे कट किया, 4 7 28, 32, नहीं 28, 33, 8 4 32, 4 784। 28 अपॉन 25 की पावर टी आ गया बेटा, यहाँ पे 784 बाई 125 आ गया, 625 सॉरी, 5 इंटू 125 6 का होता है बेटा, 28 का होता है, और नीचे 25 का होता है स्क्वायर। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, व्हाट वी गेट टाइम इज 2 ईयर है डिफरेंस, डेसिमल पंगा डाल देती है। चलो सर। आज, हाँ जी सर जब आपने अमाउंट निकाला था ये रिसेंट क्वेश्चन में, तो आपने P प्लस सबकी SI। इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, यस फर्स्ट ईयर सर। का सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो ये 3 ईयर का अमाउंट बन गया ना बेटा। प्रिंसिपल ये हो गया, तीनों को ऐड किया साथ में, तो ये अमाउंट ही होगा ना ओवरऑल। यस सर। बड़ी गंदी बुक है ये, मतलब इतने गंदे सम है ना बीच में इजी भी है, बट ये है, ये बुक करके दूसरी बुक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें सारे सम आते होंगे। करेंगे मतलब ये नहीं है नहीं करेंगे, बस 2 चैप्टर करके फिर हम दूसरी बुक में से करेंगे, क्रिस्टन में से। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके, टाटा बाय बाय। बाय सर।